ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ معرکہ حق محض دو ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ہندوستان کو مئی کی جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ معرکہ حق دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان عوام اور مسلح افواج کو بے مثال کامیابی ملی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں معرکہ حق میں فتح کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز گرائے۔ شاہینوں نے دور حاضر کی طویل ترین نتیجہ خیز جنگ لڑی۔ دشمن کی جارحیت کا جواب قومی وحدت اور جرأت سے دیا گیا۔ شکست خوردہ انڈیا سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر ثالثی کی پیشکش کو قبول کیا۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنا ہندوستان کا خواب ہے۔ بھارت کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے زیادہ ہے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے، بلکہ انتہائی خطرناک، دوررس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ قومی سیاسی قیادت کے مشکور ہیں۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ دہشت گردی ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین سے جاری ہے۔ افغانستان سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ افغانستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کے مراکز بند کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو واضح پیغام، خطاب میں بولے، قوم ہماری اور ہم قوم کی طاقت ہے۔ افواج پاکستان کے جوان دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ جس طرح دشمن کو روایتی جنگ میں شکست فاش دی، اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کے جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل UN کی قراردادوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ معرکہ حق کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ باہمی سلامتی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان ذمہ دارانہ سفارتکاری کے ذریعے تاریخی مذاکرات میں کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کو ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستان کی کوششوں کو دنیا سراہ رہی ہے۔ پاکستان کی ثالثی نے عالمی قوتوں کو اعتماد دیا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے پر امریکہ اور ایران کی قیادت کے مشکور ہیں۔ پاکستان نے لبنان میں جنگ بندی کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطینیوں پر جبر کے خاتمے کے لیے بھی کردار ادا کرتا رہے گا۔ معرکہ حق کی عظیم الشان فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी पेश की। यौम मारका हक दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तजदीद अहद का दिन है। सदर मुमलिकत का मारका हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल के जुरतमंदाना फैसले मारका हक की कामयाबी में कलीदी किरदार। अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। हमने दुश्मन की जारियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब दिया। पाकिस्तान खित्ते में तवाज़न और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल एयर चीफ नेवल चीफ को दलेराना क़यादत पर खैराज तहसीन। कहा, मारका हक में पाकिस्तान ने फैसला कुन बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। किसी भी जारियत का फौरी, मौसर और हमावक्त जवाब दिया जाएगा। हम अपनी सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। कराची में पाकिस्तान नेवी डाकयार्ड में मारका हक की तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुल्क की तमाम सियासी ताकतें दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। मारका हक ने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी किस्म की जारियत का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमने कई गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अमन और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। मारका हक में तारीखी फतह के हवाले से कोयटा में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला गवर्नर बलूचिस्तान और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। दोस्त ममालिक के फौजी अफसरान और वफूद की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए। लाहौर में भी यादगार शोहदा पर तकरीब। कोर कमांडर लाहौर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सिविल, अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी भी पेश की गई। सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स कराची में भी पुरवकार तकरीब। DDG रेंजर्स सिंध ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम सुनाया गया। मारका हक में तारीखी कामयाबी का जश्न। शहर शहर रैलियां, मुल्क भर में तकरीब। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। मुल्क भर में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं का एहतमाम। गिलगित में यादगार शोहदा पर शानदार तकरीब का इनकाद। वज़ीर आला की शिरकत। मेहमान खुसूसी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान में सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में जगह जगह तकरीबात, परचम कुशाई और रैलियां। वादी नीलम में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उच्च शरीफ में दुल्हा बारात से पाक अफवाज जिंदाबाद रैली में पहुंच गया। पेशावर, गुजरात, ओकारा, बूरेवाला, खानपुर में भी रैलियां। गोजर खान, रिहाड़ी, थरपारकर और कंदकोट में रैलियां। एबटाबाद, वजीराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। बन्नू पुलिस चौकी पर हमला। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों और सरपरस्तों को भी निशाना बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का अज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस फ्रंट लाइन पर है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू।
दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का इयादा। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात और अमन इक़दामात पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा अमीर कतर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान कतर शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करेगा। ईरान वाकई मुआहिदा करना चाहता है। हमें बहुत जल्द ईरान की तरफ से खत मौसूल होने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू करने की धमकी। कहा इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। फ्रांसीसी चैनल LCI से गुफ्तगू में कहा ईरान मुज़ाकराती अमल को तूल दे रहा है या नहीं, ये जल्द वाज़ेह हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी में तोसी अच्छी बात है। अमरीकी सदर ने अपने हक में सर्वे भी शेयर कर दिया। बोले अहम ये है कि अमरीकी क्या चाहते हैं। 53% अमरीकी जंग बंदी रखने के हामी हैं। ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना अहम है। सर्वे में 60% अमरीकियों का कहना था ईरान को एटम बम न बनाने दें। रूसी सदर पुतिन ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। कहा ईरान से अफजूदा यूरेनियम रूस में महफूज रखने के लिए तैयार हैं। रूस 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका है। अमरीका ने मुतालबा किया कि यूरेनियम सिर्फ अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल किया जाए। अमरीकी मुतालबे पर ईरान ने अपना मौक़िफ़ सख्त किया। अमरीका और ईरान के साथ राब्ते में है। उम्मीद है कि तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। पुतिन ने मज़ीद कहा समझता हूँ यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म होने वाला है। स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रोबोटिक फेको ने बताया कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ज़ाती तौर पर मुझसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमन मुआहिदा तय पाने पर हम तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। बातचीत में सहूलतकारी के लिए अमरीका के शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये रूस और यूक्रेन का मामला है। रूस चीन के साथ अहम गैस और तेल के मुआहिदे के करीब है। पंजाब में आज से आंधी और बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक आज शाम से 12 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात में भी बारिश हो सकती है। सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और DG खान और गिरदनवाह में भी बारिश की पेशगोई।